Good morning student, welcome to your SST class and I am your SST teacher Nidhi from St. Xavier Senior Secondary School. Today I am here to discussing our next new chapter 7, that is Indian states. Now here are some learning objectives of this chapter. The first one is government, the second one is types of government. There are two types of government, central government and state government. The third one is states and their capitals. The last one is union territories and their capitals. So, everyone be with your book. I am going to explain the chapter, that is chapter 7, Indian states. Let's start the chapter with the meaning of government. Government means sarkar. India is a vast country with a big population. Okay, and India is the second most populated country in the world after China. जो इंडिया है भारत, वो दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के क्षेत्र में और पहले नंबर पर कौन सा आता है? चाइना यानी चीन. A large number of people living in any country, they have different needs. किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं. Just as in your family, your parents look after you and your family members need at home. जैसे कि आपके परिवार में जो आपके माता पिता होते हैं वो आपकी देखभाल करते हैं जब किसी को घर पर जरूरत होती है. Same with the country. Government look after the needs, the welfare and the safety of the people of whole country. ऐसा ही ठीक गवर्नमेंट के साथ होता है जो वो पूरे देश के लोगों की देखभाल करती है, उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण की. So we can define the government as the government is a body formed to look after the people living in a country. सरकार देश में रहने वाले लोगों की देखभाल करने के लिए बनाई गई एक संस्था है. The government makes laws, rules, regulations to run the whole country. Well, it is a very essential to make rules and regulations to running the whole country. जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, लॉस बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है उसे चलाने के लिए. And it is made by the government to keep people safe and to help to work together. और ये सरकार गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है जिससे लोगों की सुरक्षा और उनको एक साथ काम करना सिखाए. Laws are the ways government fulfill their purpose. Like some laws, you might know that. The first one is drive slowly, and the second one is you must not cross the road when the light is red. गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स लॉस बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं जिसे लोगों को फॉलो करना चाहिए. वो क्यों? जैसे कि ड्राइव स्लोली यानी गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, रोड क्रॉस तब नहीं करना चाहिए जब रेड लाइट हो. अगर रेड लाइट पे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप हर्ट हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये रूल्स जो बनाए हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं आपकी सुरक्षा के लिए. When you these are the examples of laws which are created by the government. Who is take care of all the basic services like water, electricity, communications at your home. आपके घर में इन सारी चीज़ों की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनकी देखभाल कौन करता है? लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी देखभाल कौन करता है? ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ही ख्याल रखते हैं इन सबका कि इलेक्ट्रिसिटी घर में आए और वाटर की सुविधा हो, बिकॉज पेरेंट्स आर द हेड ऑफ द फैमिली. Just as same with the country. Country is a big and huge family and government is the head of the family. वैसे ही जैसे पेरेंट्स आपके घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, वैसे ही गवर्नमेंट
take care for our basic services like water, electricity, communication must be provided by the government. ये गवर्नमेंट द्वारा हमको प्रदान की जाती है. It is the government only which decides to build the schools, colleges, roads, hospitals, parks, stadiums, etc. These all are decided by the government. ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो schools, colleges हैं, ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू. Okay? And India has a democratic government and our country is also called the world's largest democracy. जो हमारा इंडिया है एक वो लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है. Now, how many types of government in India? There are two types of government in India. The first one is central government, केंद्र सरकार, and the second one is state government, means राज्य सरकार. The central government is also called the union government. केंद्र सरकार को हम संघ सरकार भी बोलते हैं. It looks after the welfare and safety of the people of whole country and it is located in New Delhi, the capital of India. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी कल्याण और सुरक्षा के लिए हमारे देश का देखभाल करती है और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, वहाँ पर स्थित है जो कि हमारे इंडिया की कैपिटल है. We the people of India choose the government and any government is elected for the 5 years only. हमारे भारत की जो सरकार है वो हम चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं और ये जो सरकार बनती है वो 5 साल के लिए बनती है. The important people like the president, vice president, the prime minister and the cabinet minister form the central government. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं ये सभी मिलकर केंद्र सरकार बनाते हैं. Well, all these important persons and all the offices of central government have their offices in New Delhi. ये जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, इन सब के जितने भी ऑफिसेस हैं वो सब कैपिटल, भारत की कैपिटल यानी न्यू दिल्ली में है. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री. और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास वो पावर होती है, वो शक्ति होती है जो कि पूरे देश को चलाने के लिए कानून यानी लॉज बनाती है. These laws are implemented by the central government, overseen by the prime minister. और ये जो कानून लागू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, किसकी मदद से? प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करके ये लोग अपना एक कानून बनाते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं. Now the second one is state government. It is really difficult for the central government to look after the needs of such a big population all by itself. ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है पूरे देश की देखभाल करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत है. So the country has been divided into many smaller units or parts. तो उन्होंने इसकी देखभाल करने के लिए कंट्री को छोटे छोटे भागों में यानी राज्यों में विभाजित कर दिया है, बांट दिया है. These smaller units are known as states. और ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको हम स्टेट्स कहते हैं, राज्य कहते हैं. India has total 28 states as Jammu Kashmir is converted to union territory in the last year, that is 2019. यानी जम्मू कश्मीर जो कि पहले भारत का राज्य था, अब 2019 से वो एक यूनियन टेरिटरी, संघ केंद्र शासित प्रदेश हो गया है. Each state of India has own capital. और जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी अपनी कैपिटल है, अपना राजधानी है. Each state has its own government. हर राज्य की अपनी गवर्नमेंट है which look after the welfare of the people of that state, जो कि अपने राज्य की
वहाँ के कल्याण और सुरक्षा की देखभाल करती है। इन अ स्टेट देयर इज अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट। और स्टेट में, राज्य में, जहाँ पर गवर्नर यानी राज्यपाल होता है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक साथ गवर्नमेंट को चलाते हैं। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल। और जो वहाँ का राज्यपाल होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की राजधानी में रहते हैं। सेम एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। Important people like President, Vice President, officers of central government and their offices in New Delhi। ऐसे ही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होता है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो सभी कहाँ रहते हैं? इंडिया की कैपिटल यानी हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में। So let us learn about the states of India along with their capital, and as we know India has 28 states and 8 union territories। So अब हम states और उसकी capitals के बारे में पढ़ेंगे जो कि 28 states हैं and there are 8 union territories जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। So start करने से पहले everyone be with your book, page number 43। I am going to read the chapter. You have to listen and read the chapter 4 to 5 times. Okay? The government of India, officially known as the Union Government and also known as the Central Government, was established by the Constitution of India and is the governing authority of the Union of 29 स्टेट्स है जो कि अब 28 स्टेट्स हो गए हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज जो अब 8 यूनियन टेरिटरीज है, कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो भारत की गवर्नमेंट है जिसे हम संघ सरकार के रूप में जानते हैं और इसे केंद्र सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि संघ के शासी प्राधिकरण द्वारा है, जिसे हम सामूहिक रूप से भारत का गणतंत्र कहा जाता है। इट इज सीटेड इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी है। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन दिल्ली। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो सब कहाँ रहते हैं? कैपिटल ऑफ इंडिया यानी हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, द पर्सन मोस्ट लाइकली टू कमांड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। जो प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। कैसे? जो पर्सन लोकसभा में लोगों द्वारा चुना जाता है सबसे ज्यादा वोट के द्वारा, उसको ये कमांड दी जाती है, जो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज ऑन देम ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य विभागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल इंडियन फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, वो सभी भारतीय फोर्सेस यानी इंडियन फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है। इंडिया became independent on 15 August 1947 and Republic on 26 January 1950। जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 एंड रिपब्लिक यानी गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। पीपल इन अ रिपब्लिक elect their government। जो
गणतंत्र में जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार चुनते हैं, उनका चुनाव होता है। देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। राज्यों में राज्य सरकार चुनी जाती है और केंद्र में केंद्र सरकार चुनी जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द होल कंट्री, और जो केंद्र सरकार होती है वो पूरी कंट्री यानी पूरे देश की देखभाल करती है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट इज नॉट इजी टू गवर्न अ बिग कंट्री। जो इंडिया है वो बहुत बड़ा देश है, उसे पूरे देश को संभालना इतना आसान नहीं है। Therefore, the country has been divided into smaller parts, and there are 28 states and 8 union territories, according to 2019. In the year 2000, 3 new states were created by carving out separate territories from existing states. 2000 ईयर में जो राज्य थे, जो मौजूदा राज्य थे, उनमें से 3 स्टेट्स को अलग कर दिया गया। वो राज्य कौन से थे? These are छत्तीसगढ़, द फर्स्ट वन छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया। एंड झारखंड फ्रॉम बिहार, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ये 3 नए राज्य बने 2000। Each state has its own elected government. सभी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। एंड देयर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन देयर कैपिटल सिटीज, और जो उनके ऑफिसेज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कैपिटल सिटीज यानी राजधानी के शहर में होता है। अ यूनियन टेरिटरी इज अ सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया इन द फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। एक संघ और केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक विभाग है जो कि संघीय ढांचे के रूप में है। Unlike the states of India, which have their own elected government, union territories are ruled directly by the federal government. President of India appoints an administrator or lieutenant governor for each country. भारत के राज्यों के विपरीत जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में संघीय सरकार द्वारा सीधे शासन किया जाता है। ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशासक और उप राज्यपाल नियुक्त करता है। द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं। सो द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज कंप्लीटेड। हियर आर देयर स्टेट्स, देयर कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस स्पोकन at the page number of 44. So I am going to read the state's name and their capital also. You have to listen. The first one is Andhra Pradesh, capital Hyderabad. Arunachal Pradesh, Itanagar. Assam, Dispur. Bihar, Patna. Chhattisgarh, Raipur. Goa, Panaji. Gujarat, Gandhinagar. Haryana, Chandigarh. हिमाचल प्रदेश, शिमला. मिजोरम, आइजोल. झारखंड, रांची. कर्नाटक, बेंगलुरु. केरल, तिरुवनंतपुरम. मध्य प्रदेश, भोपाल. महाराष्ट्र, मुंबई. मणिपुर, इम्फाल. मेघालय, शिलोंग. नागालैंड, कोहिमा. ओडिशा, भुवनेश्वर. पंजाब, चंडीगढ़. राजस्थान, जयपुर. सिक्किम, गंगटोक. तमिलनाडु, चेन्नई. त्रिपुरा, अगरतला. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. उत्तराखंड, देहरादून. वेस्ट बंगाल, कोलकाता. तेलंगाना, हैदराबाद. There are 28 states and their capitals. Now we move on next topic, union territories and their capitals. The first one is Andaman Nicobar. The capital is Port Blair. Second one is Chandigarh. The capital is also Chandigarh. The third one is Dadra evam Nagar Haveli and Daman and Diu. The capital is
Daman. Next one is Lakshadweep. Capital is Kavarati. Puducherry. Capital is Puducherry. National Capital Territory of Delhi. Capital is Delhi. Jammu and Kashmir. The capital is Srinagar. And the last one is Ladakh. The capital is Leh. These are the 8 union territories and their capitals. Now the first part, explanation part of chapter 7, Indian state is capital. And this is your turn. You have to read this chapter 4 to 5 times. And if you have any queries, you can ask me in WhatsApp code. Thank you. Have a nice day.